Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. Hello everyone and welcome to our channel Fly School, and today we are going to study the second chapter of class 10th, that is the nationalist movement in Indochina. So in the previous chapter we read about Europe, nationalism in Europe, and now we will study about nationalist movement in Indochina. Indochina basically means Vietnam. Okay, तो वियतनाम में किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट आया वो देखते हैं. चलिए बच्चों, वियतनाम गेन्ड फॉर्मल इंडिपेंडेंस इन 1945 बिफोर इंडिया, बट इट टुक अनदर 3 decades ऑफ फाइटिंग बिफोर द रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वॉज फॉर्म्ड. तो वियतनाम को जो अपनी इंडिपेंडेंस है वो 1945 में इंडिया से पहले मिल चुकी थी, लेकिन उसको अलग से 3 साल लग गए अपना खुद का संविधान बनाने में. ओके, अपना जो रिपब्लिक वियतनाम है वो बनाने में. दिस चैप्टर ऑन इंडोचाइना विल इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द पेनिनसुला, नेमली वियतनाम. तो ये जो चैप्टर है इंडोचाइना वो हमें किस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराएगा? वो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट से इंट्रोड्यूस करवाने वाला है जिसका नाम है वियतनाम. Nationalism in Indochina developed in a colonial context, the knitting together of a modern Vietnamese nation that brought the different communities together was in part the result of colonization, but as importantly it was shaped by a struggle against colonial domination. If you see the historical experience of Indochina in relation to the India, you will discover importantly differences in the way colonial empires functioned and the anti-imperial movement developed. तो अगर हम देखें अपने जो हिस्टोरीज है इंडिया की और इंडो चाइना की, वो कहीं ना कहीं क्या है, अलग अलग हैं, क्योंकि एक जगह पे क्या हुआ, एम्पायर्स ने फंक्शन किया और एक जगह पे एंटी एम्पीरियल मूवमेंट्स हुए थे. By looking at such difference and similarities, you can understand the varieties of ways in which nationalism has developed and shaped the contemporary world. Let's start with the chapter. The first topic of the chapter is emerging from the shadow of China. तो पहले क्या था, ये चाइना के अंदर, इंडो चाइना नाम है इसका, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं चाइना का पार्ट रहा होगा. तो ये चाइना की शैडो से, परछाई से किस तरह से बाहर निकला देखते हैं. Indochina comprises the modern countries of Vietnam, Laos and Cambodia. तो इंडो चाइना की पार्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं बच्चों? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर MCQs. ओके, its early history shows many different groups of people living in this area under the shadow of the powerful empire of China. तो एक अर्ली हिस्ट्री इसके निकल के सामने आती है कि ये कहीं ना कहीं क्या थे, चाइना की शेडो में रहा करते थे. Even when an independent country was established in what is now northern and central Vietnam, its rulers continued to maintain the Chinese system of government as well as Chinese culture. तो अब भी जो क्या था, जो नॉर्दर्न और सेंट्रल वियतनाम था, वहाँ के जो रूलर्स थे, वहाँ के जो शासक थे, वो क्या करते थे, चाइनीज सिस्टम की गवर्नमेंट अभी चला रहे थे और चाइनीज कल्चर वहाँ पर एज इट इज़ अभी चल रहा था. Vietnam was also linked to what has been called the Maritime Silk Route that brought in goods, people and ideas. वियतनाम किससे लिंक था? वियतनाम लिंक था एक मैरीटाइम सिल्क रूट, जो कि सिल्क का एक रूट कहा जाता था, जो गुड्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था. Other networks of trade connected it to the hinterlands where non-Vietnamese people such as the Khmer Cambodians lived. और जो कोई भी अलग से उनके नेटवर्क थे वो किससे जोड़ते थे? नॉन कम्बोडियंस से जोड़ते थे. ठीक है, सॉरी, नॉन वियतनामीज पीपल से जोड़ते थे, जिनको हम खमेर कम्बोडियंस बोलते थे, जहाँ पर खमेर के कम्बोडियंस रहते थे. colonial domination and resistance. The colonization of Vietnam by the French brought the people of the country into conflict with the colonizers in all areas of life. तो जो कॉलोनाइजेशन वियतनाम में हुआ फ्रेंच के लोगों द्वारा, उससे क्या हुई, कॉन्फ्लिक्ट होने लगी, वाद विवाद जिसको हम बोलते हैं. द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ फ्रेंच कंट्रोल वॉज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन, बट द फ्रेंच ऑल्सो बिल्ट अ सिस्टम दैट ट्राइड टू रीशेप द कल्चर ऑफ द वियतनामीज. लेकिन
कहीं ना कहीं फ्रेंच ने एक ऐसा सिस्टम भी बनाया था जो कि वियतनामीज के कल्चर को वापस से क्या करे, रीशेप करे. Nationalism in Vietnam emerged through the efforts of different sections of society to fight against the French and all they represented. तो नेशनलिज्म वियतनाम में कहाँ से शुरू हुआ? उनका नेशनलिज्म शुरू हुआ कि वो उन वियतनाम के जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग सोसाइटी थे, अलग अलग सेक्शंस थे सोसाइटी के, वो फ्रेंच के लोगों से क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे. ठीक है. French troops landed in Vietnam in 1858 and by the mid-1880s they had established a firm grip over the northern region. अब जो फ्रेंच के जो ट्रूप्स वहाँ पर आए थे, जो लोग फ्रेंच के वहाँ पर आए थे अपनी सेना बनाकर छोटी छोटी, वियतनाम में 1858 में और 1858 से लेकर 1880 तक उनका आना जाना चलता ही रहा. और जब वो आए तो उन्होंने नॉर्दर्न रीजन के ऊपर, वियतनाम के नॉर्दर्न रीजन के ऊपर एक कब्जा कर लिया. After the Franco-Chinese War, the French assumed control of Tonkin and Annam in 1887. French Indochina was formed. अब जब फ्रैंको चाइना वॉर हुई थी 1887 में, तो टोंकिन और अनाम को भी फ्रेंच ने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया. फ्रेंच इंडो, और जिससे क्या बन गया, फ्रेंच का इंडो चाइना बन चुका था. In the following decades, the French sought to consolidate their position and people in Vietnam began reflecting on the nature of the loss that Vietnam was suffering. अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी डिकेड्स बाद, मतलब कि कुछ डिकेड्स बाद क्या हुआ, फ्रेंच के लोगों ने तो अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दिया वहाँ पर, लेकिन वियतनाम के जो लोग थे उसको रिफ्लेक्ट करने लगे और उस चीज़ से वो, जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहे थे वो उसको शो करने लगे. नाउ नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस डेवलप्ड आउट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन. इससे क्या निकल के आया, नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस इससे निकल के आया. द फेमस ब्लाइंड पोइट नेगुइन दिन च्यू 1822-1888 bemoaned what was happening to his country. तो उन्होंने, जो एक ब्लाइंड पोइट थे, उन्होंने लिखा इस चीज़ को कि उनकी कंट्री में क्या हो रहा था. देखते हैं. आई वुड रैदर फेस अटर्नल डार्कनेस देन सी द फेसेस ऑफ ट्रेटर्स. मतलब कि वो चाहते थे कि मैं जो अटर्नल जो डार्कनेस है, जो मेरे अंदर डार्कनेस रहती है, उसको फेस कर लूँ. जब इनके जो ट्रेटर्स हैं उनको फेस से देखने से अच्छा मैं अपनी जो अटर्नल डार्कनेस है उसको फेस कर लूँ. I would rather see no man than encounter one man's suffering. मैं इससे अच्छा तो मैं कोई इंसान को देखूँ ही ना, मुझे कोई मैन सफ़र करता हुआ दिखाई दे, इससे अच्छा मैं किसी इंसान को ही ना देखूँ. I would rather see nothing than witness the dismembering of the country in decline. कि मैं कुछ ना देखना पसंद करूँगा अगर मेरी कंट्री को मेरे सामने क्या किया जा रहा है, डिसमेंबर किया जा रहा है. ठीक है. Why the French thought colonies necessary? अब फ्रेंच के लोगों को लगा कि कॉलोनीज नेसेसरी हैं. Colonies were considered essential to people, supply natural resources and other essential groups. Colonies ज़रूरी थी, किस लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को और जो ज़रूरी सामान है उनको सप्लाई करने के लिए. Like other Western nations, France also thought it was the mission of the advanced European countries to bring the benefits of civilization to backwards people. और अदर कुछ और वेस्टर्न नेशंस की तरह फ्रांस ने भी सोचा कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या है, एक मिशन है, एडवांस मिशन है कि सिविलाइजेशन को उन लोगों तक लाना जो कि बैकवर्ड पीपल है, मतलब कि जो छोटे लोग हैं उन लोगों तक सिविलाइजेशन को लेके आना. द फ्रेंच बिगेन बाय बिल्डिंग कैनाल्स एंड ड्रेनिंग लैंड्स इन द मेकोंग डेल्टा टू इंक्रीज कल्टीवेशन. और फ्रेंच ने वहाँ पर चाइना में, वियतनाम में कहाँ से शुरू किया, उन्होंने मेकोंग के डेल्टा पर क्या बना, मेकोंग एक रिवर का नाम है, उसके डेल्टा पर कैनाल्स और ड्रेनिंग लैंड्स बनाना शुरू कर दिया अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए. The vast system of irrigation works, canals and earthworks, built mainly with forced labor, increased rice production. अब जब ये शुरू हुआ तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया and allowed the export of rice to the international market. अब जो राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट तक जाने लगा. The area under rice cultivation went up from 274,000 hectares in 1873 to 1.1 million hectares in 1900 and 2.2 million in 1930. तो क्या हुआ, जो एरिया था कल्टीवेशन का, राइस की कल्टीवेशन का, वो 274,000 से लेकर 274,000 हेक्टेयर से लेकर कहाँ पहुँच गया, 2.2 मिलियन तक 1930 में जा चुका था. Vietnam exported 2/3 of its rice production and by 1931 had become the third largest exporter of rice in the world.
तो क्या हुआ, वो क्या करते थे, 2/3 जो था अपने राइस प्रोडक्शन का वो एक्सपोर्ट करते थे, और 1931 तक वो लोग क्या बन चुके थे, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस बन चुके थे. दिस वॉज followed by the infrastructure projects to help transport goods for trade, move military garrisons and control the entire region. Construction of a Trans-Indochina rail network that would link the northern and southern parts of Vietnam and China was begun. अब क्या शुरू हुआ था, एक कंस्ट्रक्शन रेल नेटवर्क का शुरू हुआ था जो कि वियतनाम के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स को जोड़े और चाइना को भी उससे लिंक करे, ये शुरू हुआ था. दिस फाइनल लिंक विद यूनान इन चाइना वॉज कम्प्लीटेड बाय 1910, और ये कम्प्लीट कब तक हुआ, 1910 तक ये कम्प्लीट हो गया. दिस सेकेंड लाइन वॉज ऑल्सो बिल्ट लिंकिंग वियतनाम टू सियाम. अब दूसरी लाइन एक और बन चुकी थी जो कि वियतनाम को सियाम से लिंक करती थी. उस टाइम पर थाईलैंड को सियाम का नाम दे रखा था. वाया द कंबोडियन कैपिटल ऑफ नोम पेन है, और कहाँ से होकर जाती थी वो, वियतनाम से वो निकलती थी, नोम पेन से होकर वो कहाँ पर जाती थी, सियाम, मतलब कि थाईलैंड तक जाती थी. By the 1920s, to ensure higher levels of profit for their business, French business interest was pressurizing the government in Vietnam to develop the infrastructure further. अब जब 1920s तक उन लोगों ने क्या सोचा कि अपने बिजनेस को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें हायर क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. वियतनाम की गवर्नमेंट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. तो वो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे. शुड कॉलोनीज बी डेवलप्ड, क्या कॉलोनीज डेवलप्ड होनी चाहिए? Everyone agreed that colonies had to serve the interest of the mother country, but the question was how. Some, like Paul Bernard, an influential writer and policymaker, strongly believed that the economy of the colonies needed to be developed. एक राइटर थे जिनका नाम है पॉल बेर्नार्ड, उनका कहना था कि इकोनॉमीज को डेवलप करना जरूरी है. He argued that the purpose of acquiring colonies was to make profits. लेकिन उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो कॉलोनीज बनाने का इनका पर्पस है वो ये है कि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सके. If the economy was developed and the standard living of the people improved, they would buy more goods. वो कैसे कि अगर इकोनॉमी डेवलप होती है और अगर लिविंग ऑफ जो लोगों की जो लिविंग है वो स्टैंडर्ड बन जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को खरीदेंगे. द मार्केट वुड कॉन्सिक्वेंटली एक्सपैंड लीडिंग टू बेटर प्रॉफिट्स फॉर फ्रेंच बिजनेस. तो क्या होगा, मार्केट बढ़ता चल जाएगा और ये क्या होगा, फ्रेंच बिजनेस, जो फ्रेंच के लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होगा. बेर्नार्ड सजेस्टेड दैट देयर वर सेवरल बैरियर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन वियतनाम. अब बेर्नार्ड ने ये भी सजेस्ट किया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, बैरियर्स हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकते हैं वियतनाम में. हाई पॉपुलेशन लेवल्स, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एक्सटेंसिव इंडेप्टनेस अमंग द पीजेंट्स. मतलब कि पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, थोड़ी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम है, और जो इंडेप्टनेस है वो यहाँ पे पीजेंट्स में बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है. टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इट वॉज नेसेसरी टू कैरी आउट लैंड रिफॉर्म्स एज द जैपनीज हैड डन इन द 1890s. तो पॉवर्टी को कम करने के लिए और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना था, लैंड रिफॉर्म्स को कैरी आउट करना था, जैसा कि जापान ने किया था 1890s में. However, this could not ensure sufficient employment. जबकि ये जरूरी नहीं है कि इससे पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट आ सके. As the experience of Japan showed, industrialization would be essential to create more jobs. तो जापान के एक्सपीरियंस से वो कुछ एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वो लोगों के लिए नई जॉब्स क्या करेगा, बनाएगा. The colonial economy in Vietnam was, however, primarily based on rice cultivation and rubber plantations owned by the French and a small Vietnamese elite. तो वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली किस पर बेस्ड थी, राइस कल्टीवेशन पर और रबर प्लांटेशन पर. ठीक है. रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ वर सेट अप टू सर्विस दिस सेक्टर. तो रेल की और पोर्ट फैसिलिटीज़ सेटअप की गई थी. एंड इंडेंट्योर्ड वियतनामीज लेबर वॉज वाइडली यूज इन द रबर प्लांटेशंस. सबसे पहले हम इंडेंट्योर्ड का मतलब देख लेते हैं. अ फॉर्म ऑफ लेबर widely used in plantation from the mid 18th century.
mid-19th century, laborers work on the basis of contracts that did not specify any rights of laborers but gave immense power to employers. तो बेसिकली आप इसको ईजिली समझते हैं तो ये इंडेंट्योर जो वियतनामीज थे वो कौन से लोग थे, लेबर, ऐसे लेबर थे जिनकी जो इनकम है, इनकी जो वेज है वो स्पेसिफाई नहीं की गई और इनका जो काम है उसको कभी बढ़ा दिया कभी कम कर दिया और सारी पावर जो है एम्प्लॉयर्स के हाथ में थी जो इनको एम्प्लॉय कर रहे थे. द फ्रेंच, तो ये लोग क्या करते थे, वाइट, ये रबर प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे इंडेंट्योर लेबर्स को. The French, contrary to what Bernard would have liked, did little to industrialize the economy. In the rural areas, landlords spread and the standard of living declined. अब रूरल एरियाज़ में क्या हुआ, लैंडलॉर्डिज्म मतलब कि जो ज़मींदारी का काम जो है वो बढ़ चुका था और स्टैंडर्ड तो फिर मतलब कि स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बढ़ नहीं रहा था. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था. ओके बच्चों, इस टॉपिक को आप पढ़ें और समझें. इट इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली. ओके, सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. सेकेंड पार्ट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से. इसी तरह से हम आप इस चैप्टर के अलग अलग पार्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे और आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है. ओके बच्चों, थैंक यू. Bye bye everyone.